Hi, this is Malik, मैं Malik. Today we'll talk about health wisdom. आज हम health wisdom की बात करेंगे. Benjamin Franklin used to say, a key which remains unused and dormant starts dusting. बेंजामिन फ्रैंकलिन कहा करते थे, वो चाबी जो पड़ी रहती है जिसका इस्तेमाल नहीं होता है उसको जंग लगना शुरू हो जाता है. Dr. Andrew Weil, in his book Healthy Aging, has written, if we don't use any part of human body, we will start losing it. For long enough, we will start losing it. Dr. Andrew Weil ने अपनी किताब हेल्दी एजिंग में लिखा है, अगर हम हमारे शरीर के किसी भी अंग का इस्तेमाल लंबे समय तक करना बंद कर देते हैं, हम धीरे धीरे उसे खोना शुरू कर देते हैं. Few years ago, I was sitting at the desk with a young man and I asked him, what will happen if you don't use your bike for 6 weeks? मैंने कुछ सालों पहले एक युवक से पूछा था, अगर आप अपने टू व्हीलर का बाइक का इस्तेमाल 6 हफ्तों के लिए नहीं करोगे तो क्या होगा? And he said that battery will be drained and I'll have to spend some money to get it started again. फिर उस युवक ने कहा, बैटरी जो है वो ड्रेन हो जाएगी, गाड़ी चालू नहीं होगी, मुझे कुछ खर्चा करना पड़ेगा अपने बाइक को चालू कराने के लिए. Then I asked him, what will happen if you don't use your bike for 6 months? फिर मैंने उस युवक से पूछा, अगर आप अपने बाइक का इस्तेमाल 6 महीनों तक नहीं करोगे तो क्या होगा? And he said that I'll have to spend lot of money in order to get it up and running again. फिर उस युवक ने कहा, मुझे बहुत खर्चा करना पड़ेगा उस को वापस इस्तेमाल लायक बनाने के लिए. Then I asked him, what will happen if you don't use your bike for 6 or 10 years? फिर मैंने उस युवक से पूछा, अगर आप अपने बाइक का इस्तेमाल 6 या 10 साल के लिए नहीं करोगे तो क्या होगा? और उस युवक ने कहा कि उसे या तो बहुत जंग लग जाएगा, मुझे उसको कबाड़ खाने भेजना पड़ेगा, या फिर बहुत खर्चा करना पड़ेगा उसे इस्तेमाल लायक बनाने के लिए. He said that it may end up in junkyard because it will be rusted, or I'll have to spend hell lot of money in order to get it up and running again. Then I asked him, how often do you move and how often do you use your body? फिर मैंने उसी वक्त से पूछा, आप कितने बार चलते हो और अपने शरीर का कितना इस्तेमाल करते हो? He said very little. उसी वक्त ने कहा, बहुत कम. Our natural detoxification system is our body's lymphatic system. हमारा natural detoxification system जो है हमारे शरीर का, वो हमारा lymphatic system है. Our lymphatic system lacks pump in order to circulate in our body. हमारे lymphatic system के पास कोई पंप नहीं है हमारे शरीर में अपना परिभ्रमण अच्छा करने के लिए. Every time we move, our circulation of lymphatic system improves. हर एक बार जब हम हमारे शरीर का इस्तेमाल करते हैं, चलते हैं, every time we use our body, circulation of lymphatic system improves. जब भी हम हमारे शरीर का इस्तेमाल करते हैं, चलते हैं, lymphatic system improve होता है. This is powerful way to stay healthy. ये बहुत ही शक्तिशाली तरीका है स्वस्थ जीवन जीने का. Every time we move, blood circulation and circulation of oxygen and nutrition to every cell in our body improves. हर एक बार जब हम हमारे शरीर का इस्तेमाल करते हैं, चलते हैं, blood circulation improve होता है, ऑक्सीजन और पोषण की सप्लाई हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक बेहतर बनती है. Remember, Hippocrates and what modern medicine says, sitting for longer than 20 to 25 minutes is now considered disease in itself. याद रखिएगा, आधुनिक समय में 25 से 20 मिनट से ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहना अपने आप में एक बीमारी माना जाता है. It will hamper circulation of lymphatic system and blood circulation. It will result in building up of biological, metabolical and toxic waste in our body. It may trigger chronic inflammation and oxidative stress, and in long term it will cause lot of lifestyle related disorders. अगर हम 20 से 25 मिनट तक से ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहते हैं, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सिस्टम का सर्कुलेशन हैम्पर हो जाएगा. बहुत सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या इन्फ्लेमेशन हो सकती है, क्योंकि जो है बायोलॉजिकल, मेटाबॉलिक और टॉक्सिक कचरा जमा होता जाएगा. ऑक्सीजन सप्लाई हैम्पर हो जाएगी, न्यूट्रिशन सप्लाई हैम्पर हो जाएगी, सर्कुलेशन ऑफ supply of oxygen and nutrition to cells of our body will be hampered because blood circulation will be hampered. So remember Benjamin Franklin's advice,
A key which remains unused and dormant are stressing. बेंजामिन फ्रैंकलिन के बहुत ही समझदारीपूर्ण सलाह को याद रखेगा। वो चाबी जो पड़ी रहती है उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। रिमेंबर व्हाट डॉक्टर एंड्रू वेल हैज़ रिटन इन हिज बुक हेल्दी एजिंग। याद रखिएगा डॉक्टर एंड्रू वेल ने क्या लिखा अपनी किताब हेल्दी एजिंग में। इफ़ वी डोंट यूज़ एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी लॉन्ग एनफ विल स्टार्ट लूजिंग इट। अगर हम अपने शरीर के किसी भी अंग का इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं करते हैं, हम धीरे धीरे उसे खोना शुरू कर देंगे। वॉक at least 10,000 steps every single day, and after every 20 to 25 minutes walk for few minutes, do some stretches for few minutes, do some yoga poses for few minutes. It will improve blood circulation of supply of oxygen, nutrition, and it will also improve circulation of lymphatic system and natural detoxification. हर एक रोज़ जो है कम से कम 10,000 कदम चलिए। वॉक एट लीस्ट 10,000 स्टेप्स एवरी डे, एंड हर एक 20-25 मिनट के बाद कम से कम रोज़ जो है कम से कम 10,000 कदम चलिए, और हर एक 20-25 मिनट के बाद कम से कम 2-3 मिनट के लिए चलिए। थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए, कुछ योगा पॉजेज कीजिए। इससे आपके शरीर में खून का परिभ्रमण, सर्कुलेशन बेहतर बनेगा, पोषण और ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर बनेगी आपके शरीर की कोशिकाओं तक, और नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन, लिम्फेटिक सिस्टम का सर्कुलेशन बेहतर बनने से इम्प्रूव होगा। इन इंडियन स्क्रिप्चर्स देयर इज़ अ ब्यूटीफुल श्लोका। भारतीय प्राचीन ग्रंथ में बहुत ही सुंदर श्लोक है। नास्ति विद्यासम चक्षु, लिटरली ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश, देयर आर नो आइज इक्वल टू और ग्रेटर देन आइज ऑफ नॉलेज। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही सुंदर श्लोक है। नास्ति विद्यासम चक्षु, ज्ञान के समान, ज्ञान से महान, ज्ञान से बड़ी कोई आंखें नहीं है। इन बाइबल देयर इज़ अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल प्रोवर्ब। बाइबल में बहुत ही सुंदर प्रोवर्ब है। My people were destroyed because of lack of knowledge. मेरे लोगों का नाश हो गया, विनाश हो गया, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था। Now I have given you piece of information and knowledge. अब मैंने आपको जानकारी दी है और ज्ञान दिया है। Little deeds are little seeds. They grow up either as flowers or weeds. हर एक छोटे छोटे कर्म जो हैं वो बीज की तरह होते हैं, छोटे छोटे। वो या तो फूल बनकर खिलते हैं या बिन ज़रूरी के पौधे और कांटे बनकर। Choice will always be yours. निर्णय हमेशा आपका रहेगा। This is Maulik. Have a great day.